and welcome to this special episode of the Buck Stops Here, coming to you from Turkman Gate in Old Delhi, an area which even today remains in many ways symbolic of the old Sanjay Gandhi years, an area through which Arvind Kejriwal this week took his Jhadu Lagao Yatra, arguing that it could create a new political future for Delhi. On this episode of Election Nama, we'll be asking whether Arvind Kejriwal really has a chance at significant gains in the election of Delhi. Beyond the rhetoric, is he in politics for the long haul? And if there is a hung assembly, who will he support, the Congress or the BJP? Arvind Kejriwal on this episode of Election Nama on the Buck Stops Here. आज भी 4 दिसंबर में एक चीज याद रखना, भारत के निशान पे वोट देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। Can the humble broom be the mighty magic wand for a newborn party? One that claims it can sweep away 15 years of Congress rule in India's political capital. The Aam Aadmi Party has been called many things by many people. Revolutionary, utopian, anarchists, political insurgents, game changers. But whatever your opinion of Arvind Kejriwal, one thing is certain. He can no longer be dismissed as merely the new kid on the block. A party that was born just a year ago has emerged at the very least as a key protagonist in the power play of Delhi politics. Here in the by-lanes of Old Delhi, where both the sitting MLA and the Member of Parliament are from the Congress, Kejriwal and his volunteers have just kicked off a 10-day mass contact program, what they call a Jhadu Lagao Yatra. Here in the Turkman Gate area right behind me, Arvind Kejriwal is in the middle of his road yatra, one that he believes will pose a direct challenge to the Sheila Dikshit government and her rule for 15 years. Much has been said about Arvind Kejriwal. He's been described as a game changer. He's been described as a possible kingmaker. In his party's own estimation, why kingmaker? They say he will be the king. But irrespective of what the electoral outcome is, one thing's for sure, the Aam Aadmi Party has changed the discourse of politics. It has brought a paradigm shift in the nature of how Indians look at politics and at elections. The Aam Aadmi Party may be small, but it is spunky. It may be young, but it is focused. Its street corner campaigns and door-to-door contacts have made some steady inroads. Not just in posh upper-class neighborhoods where citizens may identify with its "not politics as usual" slogan, but more significantly also among lower income groups, in slums, Dalit colonies, among drivers and auto rickshaw unions. Arvind Kejriwal was quick to use Delhi's autowalas to navigate his nascent political journey, using them to carry posters attacking his rivals instead of the usual billboards. Today, they are among his most loyal supporters. आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपकी टोपी से लग रहा है, तो आपने इस पार्टी के साथ जुड़ने पे फैसला कैसे लिया और कब लिया? ये मैंने फरवरी में पिछली साल 2012 में फैसला लिया। अच्छा। क्योंकि एक ईमानदार आदमी मुझे केजरीवाल नजर आए। अच्छा। और ये अपने इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो रिजाइन देके और मैदान पब्लिक के साथ आ गए। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? पहले किसको वोट देते थे आप? पहले तो कोई निर्णय नहीं था। अगर बीजेपी दिखाई दी बीजेपी को, तो कांग्रेस दिखाई दी कांग्रेस को दे दी, लेकिन अब सुनेंगे कि हाँ हमें कितने बेनिफिट मिलता है और कौन सी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अभी पिछले इलेक्शन में कांग्रेस सरकार 15 साल से बराबर रह रही है। हमारी सीएनजी 21 रुपए 90 पैसे थे और 3 साल बराबर चलती रही, 39 रुपए
90 पैसे गैस पहुंचा दी हमारे, इन्होंने क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। हमारे केजरीवाल सरकार आने से पहले ही हमारे लिए ये बजट बढ़ा हुआ। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है? बीजेपी के बारे में अभी हमारा कोई वोट का निर्णय नहीं है उनके लिए, तो हम उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। मोदी इफेक्ट यहाँ कोई नहीं? मोदी के टाइम में देखेंगे मोदी को, मोदी का बाद में। मोदी का अभी विधानसभा का है, लोकसभा का नहीं है। लोकसभा का आएगा तो मोदी को देखेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। Then there are the volunteers who have poured into Delhi, often travelling miles to be part of this campaign. More than 2,000 NRIs have affiliated themselves to the Aam Aadmi Party. Their donations, 18 crore rupees at last count, have started a political fight, with the Home Minister saying that foreign contributions will be investigated. Kejriwal has hit back, saying his donations are disclosed on the party website, unlike the opaqueness he claims engulfs the funding of both the BJP and the Congress. He's charged the Congress of getting 2,000 crores in donations. His volunteers are unfazed by the controversy. Tara came to Delhi all the way from Pune. Her son was the first to be hooked, and now she says she's in the fight for the long haul. You've come all the way from Pune? Yeah, along with my son. What made you come to Delhi? Because you live in Pune and you're in Delhi. What made you come? I came to Delhi. I live in a hotel, and basically it was my son who got involved with the movement after at the time of the Uttarakhand floods. He worked with Aam Aadmi and he was very happy with the work that he did and with the work they were doing. Then they said, why don't you come and help us in Delhi? So in fact he left his work, like he works with us. He's been there for 2 months and the conditions are fairly horrific, but he's committed. Then he kept telling me, you have to come, you have to come. So I said, my husband, my children, whatever, but I said, no, I'll come. What do you like about Arvind Kejriwal or the Aam Aadmi Party? I like his honesty. There's no doubt about it. I like his commitment and I like everything that he says. We are tired, absolutely, whether it be Pune, whether it be Assam, we are tired of corruption. Everyone's looking for a way out of this. And if a person comes along, he's like a ray of sunshine. And if he can deliver it to us, then it is our job to give up our life, put our life on hold for a couple of months, which is what we've all done. Arvind Kejriwal first has to win his own election against the Delhi Chief Minister Sheila Dikshit. But as his small cavalcade winds its way through these crowded bazaars, he certainly got everyone talking. आप लोगों से पूछते हैं कि भाई किस तरह का माहौल लग रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। यहाँ पर सभी राजनीतिक ओपिनियंस के लोग हैं और आप लोग तो शायद अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल झाड़ू। आप भी झाड़ू के साथ हैं? हम भी झाड़ू। और आप? कांग्रेस। और आप? बीजेपी। आप बीजेपी। तो यहाँ एक आप बीजेपी के, आप झाड़ू के साथ और आप कांग्रेस के साथ। तो पहले आपसे पूछती हूँ क्योंकि यहाँ झाड़ू वालों से तो हमें कई लोगों से बात हुई। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बारी कांग्रेस की जो पॉलिटिकल फॉर्चून्स हैं उनको धक्का पहुंचा सकता है? नहीं। क्यों? कांग्रेस से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शुरू से कांग्रेस जीतती आई है। कांग्रेस के साथ काफी दुआएं हैं, हर चीज है। कांग्रेस का खत्म हो गया कहानी। आप कहते हैं खत्म हो गई? खत्म। कांग्रेस आ ही नहीं सकती है दिल्ली से। चलो उनको बोलने तो दो। बिजली के बिल इतने कर दिए कांग्रेस ने। मेरे भाई को शायद मेरे भाई को पता नहीं। अच्छा, उनको बोलने उस गरीब को किसी दिन से पूछा कि बिजली के बिल कितना, लोग आत्महत्या कर रहे हैं बिलों की वजह से। मेरे भाई को यही नहीं पता कांग्रेस ने क्या किया। अच्छा, आपको उनको बोलने तो दो, फिर आप बोलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे तो गर्मा गर्मी हो गई है। आप बताइए, वो कहते हैं भाई बिजली के बिल इतने ऊंचे हैं, सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो कांग्रेस को क्यों आप वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो वोट काट कर होती है, थोड़ा काम सपोर्ट करती है हमें। आपको तो हमारे एरिया का जो कांग्रेस का है वो सपोर्ट करने वाला है। और एक मिनट, अरे उनको बोलने तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल को मैंने अभी तक देखा नहीं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपको लगता है आपने आजमाया नहीं? कांग्रेस के हाल में क्या काम हो रहा है? 15 साल से बच्चे अपहरण हो रहे हैं। अच्छा, आप किसके साथ हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों चाहते हैं? बीजेपी चाहते हैं जी, 15 साल से हम इनको देखते आ रहे हैं। कांग्रेस को तो कोई सुविधा नहीं है, लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, हादसे हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। क्या सरकार हमारी क्या कर रही है? हम चाहते हैं बीजेपी को चेहरे देखते 15 साल। पर आपको मोदी पसंद है? हमें मोदी पसंद है, ग्रेट मोदी। अच्छा देखिए, यहाँ बीजेपी कौन? मोदी कौन है? अच्छा, यहाँ से आए हुए हैं,
उन्होंने क्या करा मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं, ऐसे मुसलमान काम की बात चलेगा यहाँ पर। दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे The question is whether an anti-establishment crusader can succeed in becoming part of the power establishment. And can he do this on his own terms, or will he also fall prey to the usual pressures of politics? Election Nama today with Arvind Kejriwal. Arvind, many different adjectives have been used for you in the media. Game changer, kingmaker, somebody who could upset all the assumptions of this election. आप अपने लिए क्या लफ्ज या क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे? आम आदमी। आम आदमी। क्या चांसेस मानते हैं अब अपनी इलेक्शन की इसमें, क्योंकि आपने अपनी जो इंटरनल सर्वे है, योर इंटरनल सर्वे हैज गिवन यू 47 सीट्स, बट रियलिस्टिकली बिकॉज ओपिनियन पोल्स कैन गो राइट, दे कैन गो रॉन्ग, यू बीन ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज योर ओन असेसमेंट फॉर योरसेल्फ? देखिए, 65 साल पहले इस देश के लोगों ने अपनी किस्मत जो है ये बीजेपी कांग्रेस वालों को दी थी। इन्होंने देश को लूट लिया। इस बार आम आदमी ने तय किया, इस देश के आम आदमी ने तय किया कि अब इनको पार्टियों को निकालेंगे और आम आदमी खुद जाके अब अंदर बैठेगा और अपने लिए पॉलिसीज बनाएगा। दिल्ली में दोनों सत्ता में है, विपक्ष कुछ नहीं है। दिल्ली में बीजेपी 7 साल से एनसीडी में राज कर रही है, 15 साल से शीला दीक्षित जी का दिल्ली में राज है। दोनों पार्टियों ने मिलकर दिल्ली को लूट लिया। तो दिल्ली वाले मन बना चुके हैं कि इस बार हमें ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार पार्टी चाहिए। पहले उनके पास विकल्प नहीं होता था, इस बार उनको भगवान की दया से विकल्प भी मिल गया है। तो इस बार तो लोग मन बना चुके हैं, ईमानदार सरकार चाहिए, झाड़ू पे मोड़। बहुत से ओपिनियन पोल्स और सर्वेज ये सजेस्ट करते हैं कि ये भी मुमकिन है कि इस बारी एक हंग असेंबली आएगी। जब मैंने शीला दीक्षित से ये सवाल किया, मैंने कहा कि आप क्या मानती हैं कि कौन जीतेगा, तो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में बोला या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, हंग वर्डिक्ट नहीं होगा, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी और हंग असेंबली नहीं होगी, क्लियर वर्डिक्ट होगा या कांग्रेस या बीजेपी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो लोग बिल्कुल कटे हुए हैं जनता से, उनको पता ही नहीं जनता के मन में चल क्या रहा है। आज आपने देखा किस तरह से, और मुझे मीडिया वालों ने कईयों ने बताया, वो साइड में कई लोगों से पूछते जा रहे थे, दुकान वालों से पूछते जा रहे थे, तो टीवी चैनल वाले ने आके मेरे को बताया, कहते कि 10 में से 8 आदमी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को। तो ये शीला दीक्षित बीजेपी वाले ये अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इनको पता नहीं आम आदमी की दिक्कत क्या है। अब शीला दीक्षित को थोड़ी प्याज खरीदने जाना पड़ता है, प्याज तो उनको सबको खरीदने जाना पड़ता है, टमाटर तो उनको सबको। कल मेरे को एक आदमी मिला, कहता है जी 150 रुपए की 2 टाइम की सब्जी आई है मेरी। अब 150 रुपए की 2 टाइम की सब्जी आएगी और शीला दीक्षित सोचेगी उस बार भी उसकी कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो वो किसी गलत फहमी में ही है। पर शीला दीक्षित भी कहती है कि भाई मैंने भी 1 हफ्ते बाद भिंडी के साथ प्याज खाया, मुझे भी चोट पहुंच रही है इन कीमतों की। वो तो झूठ बोलती है। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? उसकी कितनी तनख्वाह है आप बताइए। 1 लाख रुपए होगी उसकी तनख्वाह? मुझे पता नहीं। तो 1 लाख रुपए अगर तनख्वाह है और वो कहती है मैं भिंडी के साथ प्याज नहीं खा पाई, तो वो तो झूठी बोल रही है। प्याज की तकलीफ इन लोगों को होती है, ये जो खड़े हैं ये नहीं प्याज खा पाते, ये टमाटर आलू कुछ नहीं खा पा रहे। ये शीला दीक्षित को तकलीफ नहीं होती प्याज की, वो झूठ बोल रही है। जैसे वो नाटक करती है, जब दामिनी का बलात्कार हुआ था, कहती है मेरी भी जब बेटी बाहर जाती है मुझे चिंता होती है। अरे आपकी बेटी के साथ तो 4 बॉडीगार्ड जाते हैं, इन लोगों के साथ थोड़ी जाते हैं बॉडीगार्ड, इनकी बच्चियों के बेटियों के साथ थोड़ी बॉडीगार्ड जाते हैं। तो इनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ शीला दीक्षित को नहीं। लेकिन आपने दिल्ली रेप की बात की, बलात्कार की बात की, आपकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई, आपके अगेंस्ट डेफमेशन नोटिस भी आया शीला दीक्षित कैंप की तरफ से कि भाई ऑटो रिक्शाज जो आपके कैंपेन के बहुत बड़े हिस्सा हैं, you put posters on these auto rickshaws saying that if you don't want more rapes, vote for the Aam Aadmi Party, because if you want more rapes, then vote for the Congress. आपने इस तरह से एक स्लोगन दिया। आप क्या इस स्लोगन को रिग्रेट करते हैं? ना बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस बार भी दिया बेईमानों को वोट तो होता रहेगा बलात्कार। You don't regret this statement because you have been accused of politicizing rape. इसमें it should be. Should rape be politicized? It should be. I'll tell you what is politicization.
राजनीति बहुत अच्छी चीज है। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने, सरदार पटेल ने की थी, उन्होंने भी चुनाव लड़े थे। उन दिनों में कोई राजनीति में जाता था तो कहते थे देश की सेवा करने जा रहा है। आज ये लोग राजनीति नहीं कर रहे, आज ये लोग दलाली कर रहे हैं बैठ के, बीजेपी और कांग्रेस वाले। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब है कि चुनाव इस बार इस बात पे लड़े जाने चाहिए कि बलात्कार को रोकने के लिए कौन सी पार्टी सक्षम है या किसने संघर्ष किया बलात्कार को रोकने के लिए। एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर चुनाव लड़े। वो क्या चाहते हैं कि नहीं, चुनाव तो धर्म के नाम पे लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान के दंगे कराएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो जात के नाम पे लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं इस बार इकट्ठे हो जाओ सारे। चुनाव इस बार धर्म के नाम पे नहीं लड़े जाएंगे, चुनाव इस बार जातियों के नाम पे नहीं लड़े जाएंगे। चुनाव इस बार इस पे लड़े जाएंगे कि महंगाई कौन कम करेगा, चुनाव इस बार इस पे लड़े जाएंगे भ्रष्टाचार कौन कम करेगा, चुनाव इस पे लड़े जाएंगे बलात्कार कौन कम करेगा। इसके ऊपर चुनाव लड़े। वो कहते हैं पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं पॉलिटिसाइज, ये चुनावी मुद्दे बनने चाहिए। बट कैन आई आस्क यू समथिंग, आप कहते हैं कि भाई आप सत्ता में आएंगे, आपको अगर इलेक्शन में जीत मिलती है, दिस सिटी विल बी सेफर, लेकिन लोग ये भी कहेंगे कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, दिस इज योर फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं दैट इफ यू विन इलेक्शंस बलात्कार कम होंगे, देयर विल बी अ डिक्रीज इन रेप, Delhi will be a safer city. How can you guarantee this? It's a great election slogan, but what is its realistic quotient? हम बहुत खुश हैं कि हमको इनके वाला एक्सपीरियंस नहीं है। इन लोगों को 15 साल का भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है, इन लोगों को 15 साल का लूटने का एक्सपीरियंस है, इन लोगों को 15 साल का कंप्लीटली मैल गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है। हमें बहुत खुशी है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है वो सब। हमें 15 साल का संघर्ष का एक्सपीरियंस है, हमें 15 साल का झुग्गियों में, लोगों में, आम लोगों के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है। पिछले 1 साल से दिल्ली के अंदर जब भी कोई बलात्कार हुआ है, आम आदमी पार्टी सबसे आगे संघर्ष करती हुई नजर आई है। चाहे वो 5 साल की लड़की का बलात्कार था, चाहे वो दामिनी का बलात्कार था, चाहे वो गोकुलपुरी की वो लड़की का बलात्कार। आज दिल्ली के अंदर किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम हो जाता है, लोग शीला दीक्षित के हम फोन नहीं करते, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर फोन आता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हम लोग, वो भी कहते हैं कि उन्होंने जो हेल्पलाइन सेटअप की उस पर लाखों फोन कॉल आते हैं। करा क्या उन्होंने? करा तो कुछ नहीं। हम लोग ही दिखाई देते हैं। शीला दीक्षित दिखाई दी कहीं पे? कहीं दिखाई दी शीला दीक्षित? कहीं नहीं दिखाई देती। और फिर जब भी कुछ हो जाए कहती है दिल्ली पुलिस में रेंडर में नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि हमारी नीयत कम से कम है कि हम संघर्ष करना चाहते हैं और हम औरतों को सुरक्षा देना चाहते हैं। उनकी नीयत खराब है, ये तो साबित हो चुका है। अब क्या क्या करने की जरूरत है? बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। आज दिल्ली की विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के ऐसे एमएलए बैठे हुए हैं जिनके ऊपर किस्म किस्म के जुर्म के, अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर किस्म किस्म के अपराध के वो चल रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे लोग विधानसभा में बैठेंगे, आपके घर की बहुबेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। अगर अपराधी अंदर जाके बैठेंगे, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, चरित्रवान लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जिसको भी टिकट दे रही है, 3 चीजें सुनिश्चित कर रही है कि वो ईमानदार हैं, वो चरित्रवान हैं और इनके ऊपर कोई भी अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा है, तो ये इंश्योर कर रही है। दूसरी चीज, अभी एक अखबार के अंदर स्टोरी आई थी कि दिल्ली के अंदर 1 जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक 1330 बलात्कार के केसेस हो चुके हैं। हमें दामिनी का केस तो पता है कि दामिनी का केस हुआ, आप सारे मीडिया वालों ने दिखाया। उस केस में 8 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में, बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ उसका तो किसी को पता ही नहीं है। उसमें तो बलात्कारियों को 20-20 साल। आप क्या बदलेंगे? व्हाट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर, इफ यू आर इन पावर? आई एम कमिंग टू दैट। तो सबसे पहली चीज ये है कि इन लोगों को देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। सजा मिलनी चाहिए, सख्त मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए। तो नए कोर्ट्स क्यों नहीं बनाए जा सकते? लोअर जुडिशरी तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। नए कोर्ट्स बनाओ, नए जजेस बनाओ। आम आदमी पार्टी इतने जजेस नियुक्त करेगी, इतने कोर्ट्स बनाएगी कि अगर कोई बलात्कार के केस होता है या कोई भी दूसरा क्राइम का केस होता है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। तो वंस देयर इज सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, तो एक डिटरेंस क्रिएट होगा। तीसरी चीज है कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो क्या हम ये बार बार कहते रहेंगे कि पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली पुलिस? हम ये नहीं कहने वाले। तो एक स्पेशल सुरक्षा दल बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर। तो हर इलाके के अंदर, हर 272 म्यूनिसिपल वार्ड है, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 20 से 25 स्पेशली ट्रेंड लड़के लड़कियों को ट्रेन किया जाएगा। और ये पूरा सुरक्षा दल जो है ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के सुपरविजन में बनाया जाएगा, जो कि उस वार्ड में
महिलाओं की और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए। ओके, आपने कहा अभी कि हम हिंदू, ये लोग तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। यू हैव प्रॉमिस्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। यू हैव सेड यू विल नॉट इंडल्ज इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ द ओल्ड फैशन सिनिकल काइंड, लेकिन फिर भी आप जाके एक ऐसे मौलाना से मिले जिसके बारे में तस्लीमा नसरीन कहती है दिस इज द मौलाना हु इशूड अ फतवा अगेंस्ट मी। देयर इज एविडेंस। It was part of a board. It was part of a board. This Maulana was part of a board that issued the fatwa. He is associated with the fatwa against George Bush. मैं आपसे एक पूछना चाह रही हूँ। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने आज उसी मौलाना के साथ एक स्टेज शेयर किया है। Do you really want to play that old style cynical politics जहाँ पे religious leaders को जाके वू किया जाता है वोटों के लिए? देखिए, रिलीजियस लीडर्स इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? इस देश का हिस्सा है। दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं, हम उनके साथ नहीं है। एक वो लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत की राजनीति फैलाते हैं। जस्ट बिकॉज वो अगर रिलीजियस लीडर्स हैं हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम ऐसा नहीं मानते। मैं हर जगह जा रहा हूँ, एक दिन में मैं 10-10 मंदिरों में भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ। उनके हर गांव के अपने अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग देवता हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ। जब मैं मंदिरों में गया, आपने कभी नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा कि ये तो तुम हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हो। जब मैं गुरुद्वारों में, पता नहीं कितने गुरुद्वारों में मैं अरदास के लिए जा चुका हूँ, आपने कभी नहीं कहा। जब मैं चर्च में गया, आपने कभी नहीं कहा। मैं जब किसी मौलाना से मिलने चला गया तब एकदम पर उनकी जो पॉलिटिक्स है, फतवा पॉलिटिक्स, एंटी विमेन पॉलिटिक्स, आ रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये कि सारे धर्मों से मिल रहे हैं हम लोग, और हमारा मैसेज क्या है? ये लोग जाके हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ताकि उनके बीच में लड़ाई हो, और एक हिंदू जाके बीजेपी के साथ मिल जाए और मुसलमान जाके कांग्रेस के साथ। इनकी सारी पॉलिटिक्स यही है, या मुसलमान जाके समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाए। हम मैसेज लेके जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? आप मेरी स्पीचेस सुनो। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार इकट्ठे हो जाओ। अन्ना हजारे ने इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको इकट्ठा कर दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ये सारी पार्टियां डर गई। इनको पता है कि दोनों पार्टियों ने चोरी कर रखी है। हम जाएंगे तो जनता भ्रष्टाचार के बारे में पूछेगी, इसलिए इन्होंने फिर बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने को पूछा जी कब बनाओगे? कहते डेट नहीं बताएंगे, हर 5 साल में मुद्दा उठाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पर ये जो मौलाना साहब है, ये जो मौलाना साहब है, व्हाट ही रिप्रेजेंट्स? एंटी वुमेन फतवा पॉलिटिक्स? नो, ही डज नॉट। मैं अभी आपको एक वीडियो दूंगा। अभी जून 2013 की उनकी स्पीच है, आप उस स्पीच को चलाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया केवल नेगेटिव चीजें क्यों चलाता है? आपने पूरा दिन, सारे मीडिया ने एक दिन 24 घंटे उनकी ऐसी तैसी करी मीडिया के ऊपर। उनकी स्पीच सुनिए आप। उन्होंने स्पीच के अंदर कहा है कि इस देश के अंदर हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि मुसलमानों के लिए जहर ना अपने दिल में रखें। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि हिंदुओं के प्रति अपने मन में जहर ना रखें। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे मन में जहर पैदा करने की कोशिश करेंगी। इस देश को, इस देश के आम हिंदू और मुसलमान ही बचा सकते हैं। शंकराचार्य वहां स्टेज पे मौजूद थे। शंकराचार्य के साथ उन्होंने हाथ उठा के कहा कि मैं और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। उस स्पीच को चलाइए आप। बहुत ही पॉजिटिव स्पीच है। पॉजिटिव स्पीच नहीं चलाएंगे। मैंने बार बार बोला, मैंने जितने टीवी चैनल्स पे उस दिन डिबेट हुए थे उन सबको मैंने एडिटर्स को लिखा, मैंने कहा स्पीच को चलाइए, इतनी पॉजिटिव चीज नहीं चलाएंगे। गालियां देंगे, नेगेटिव चीज चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पॉजिटिव चीज नहीं। पर आप भी चलाइए, आपको मैं अभी दूंगा, इसको जरूर चलाइएगा। तो आप रिग्रेट नहीं करते? मैं रिग्रेट नहीं करता। इज्जतदार आदमी है, मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। मैंने उनसे बात की थी जब मैं फ्रैंकली जब मैं गया था, मेरे को ज्यादा नहीं पता था। मैं बरेली गया था चादर, क्योंकि आपके कई सपोर्टर्स ने ट्विटर पे बोला दैट बिफोर यू मेट हिम यू डिड नॉट नो दिस बैकग्राउंड, नाउ दैट यू नो दिस कंट्रोवर्सी, नाउ दैट यू नो दिस बैकग्राउंड। आई एम कमिंग टू दैट। जी, मैं मानता हूं कि जब मैं बरेली गया था, मैं बरेली में चादर चढ़ाने गया था, मुझे नहीं पता था। जब कंट्रोवर्सी हुई मैंने सारी तहकीकात की, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फतवा जारी नहीं किया। He says I don't do with this kind of politics. But wasn't he part of a board of 100 people who issued the fatwa? I don't know whether their meeting took place or the mufti did the fatwa. I have not gone into those details. मैं उन डिटेल्स के अंदर नहीं गया। पर वो आदमी ऐसे नहीं है। आप स्पीच तो सुनिए, वो कितने बढ़िया वो बातें बोल रहे हैं देश के अंदर घूम घूम के। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक सिनिसिज्म लोगों में आ गई है कि जब रिलीजन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो हमारे नेता जो हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के लीडर्स हों, चाहे इस्लाम के लीडर्स हों, चाहे किसी भी धर्म के लीडर्स हों, ये रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो मेल है ये नहीं होना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि ये एक डेंजरस कॉकटेल है। नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप जहर पैदा करते हो तो गलत है। अगर आप प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हो तो सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्यार और मोहब्बत क्या है? ये भी तो आध्यात्मिकता है, ये भी तो रिलीजन है।
हम सारे देश के लोगों के पास जा जाके बार बार ये कह रहे हैं, मेरी सारी स्पीचेस में भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति हमें खत्म करनी पड़ेगी, ये नफरत की राजनीति हम लोगों को खत्म करनी पड़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ सारे रिलीजियस लीडर्स के, अच्छे लोगों के पास, मैं अच्छे लोगों के पास जाता हूँ, मैं सब लोगों के पास जा रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ भाई सारे आओ, सारे साथ जुड़ो। अच्छा, आपकी कैंपेन की बात करते हैं। पीपल से दैट व्हाइल अरविंद केजरीवाल इज वेरी गुड एट बीइंग एन एंटागनिस्ट, ही इज वेरी गुड एट opposing, at protesting, at saying what's wrong. But what does he stand for? तो एक मुद्दा उठाते हैं बिजली के बिल्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। Now you have said that you will reduce the tariff by 50%. दूसरी तरफ शीला दीक्षित की एक आर्ग्यूमेंट है कि अभी भी जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है 1 रुपए से ज्यादा, और 200 यूनिट के ऊपर भी 80 पैसे की सब्सिडी हर यूनिट पर मिल रही है। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सब्सिडाइजिंग। मान लीजिए आप इलेक्शन जीत जाते हैं, यूर इन गवर्नमेंट, यू विल हैव टू डील विद दीज रियल प्रॉब्लम्स दैट इवन एट दिस हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सब्सिडाइज्ड। फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपके चैनल को एक एक्सरसाइज देता हूँ, बताइए। 2002 में शीला दीक्षित जी ने कहा था कि भाई दिल्ली में बिजली की चोरी बहुत हो गई, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये प्राइवेट कंपनियां आएंगी, ये बिजली की चोरी कम करेंगी। जब बिजली की चोरी कम हो जाएगी तो हम दिल्ली में बिजली के दाम कम कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? 2002 में, याद है आपको? 2002 में बिजली की चोरी दिल्ली में थी 60%। अब 11 साल में इन्होंने, कंपनियों ने बिजली की चोरी तो कम कर दिया, बिजली की चोरी अब हो गई है 15%, 45% बिजली की चोरी कम हो गई। हाउ मच डज इट ट्रांसलेट टू? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। शीला दीक्षित जी ने कहा था बिजली की चोरी कम होगी, हम बिजली के दाम कम करेंगे, बिजली के दाम 3 गुना हो गए। ये सारा पैसा कहाँ गया? वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज गया कहाँ? किसी को नहीं पता। ये जो अब 3 गुना पैसे बढ़ा दिए, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? किसी को नहीं पता। पिछले साल बिजली कंपनियों का शायद 15,000 का टेस्ट चेक करवाया था इन्होंने, DERC ने। उसमें पता चला कि 10% लोगों का बिजली का कंजम्पशन जीरो दिखाया हुआ इन कंपनियों ने। जब उनसे जाके पूछा, लोगों ने कहा हमने तो बिजली का बिल दिया था। आपने बिजली का बिल दिया था, कंपनी में आपके नाम पे जीरो लिखा हुआ है, वो पैसा गया कहाँ? आर देयर पैरेलल अकाउंट्स? इन कंपनियों ने अपनी 2010 में DRC के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 900 करोड़ रुपए का सामान इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का अपनी सिस्टर कंसर्न से खरीदा है। दे आर इन्फ्लेटिंग देयर एक्सपेंसेस, दे आर डिफ्लेटिंग देयर रेवेन्यूज। अभी पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने, दोनों ने सिस्टर कंसर्न्स खोल के, सवेरे दिल्ली में आज सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है लगभग 1500 मेगावाट। ये सस्ते में बिजली बेचते हैं, महंगे में खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं। सो वो बुक एंट्रीज कर रहे हैं, और बुक एंट्रीज करके इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का आर्टिफिशियल लॉस दिखाया। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट कंपनीज आर फजिंग देयर अकाउंट्स, दैट्स व्हाट योर एलिगेशन इज। फजिंग देयर अकाउंट्स ऑन अ लार्ज स्केल। शीला जी नोज अबाउट इट, DRC नोज, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो वी सेड, हमने शीला जी को कहा इनका ऑडिट करवाइए, ऑडिट होना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग विद? शीला जी कहती है मैं तो तैयार हूं, कंपनीज नहीं मान रही हैं। अरे आप क्या मुख्यमंत्री हैं? फिर आपने हैव यू एब्डिकेटेड योर रिस्पांसिबिलिटी कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है? तो अगर आपकी पार्टी जीती है, पहले इनका ऑडिट करवाएंगे। अगर आपकी कंपनी ऑडिट नहीं करवाएगी उसको लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, नई कंपनी ले आएंगे। अगर आपकी पार्टी जीतती है, विल यू रिवर्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट आर यू सेइंग देन? व्हाट विल बी योर पॉलिसी? वी आर सेइंग सबसे पहले इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवाने पे अगर ये कोई कंपनी ऑडिट नहीं कराती है, उसका लाइसेंस कैंसिल करके फ्रेश ले आएंगे। ऑडिट करवाने के बाद 3 महीने में ऑडिट पूरा करा लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिगेशन कि मीटर सारे तेज चल रहे हैं, और देयर इज एविडेंस ऑल्सो, बट वंस वी गो इनसाइड ओनली देन वी विल नो व्हाट द ट्रूथ इज। मीटर्स की चेकिंग कराएंगे। दिल्ली के अंदर आधे से ज्यादा लोगों के बिल जो आ रहे हैं, वो बिल सारे गलत आ रहे हैं। उन बिल्स को ठीक करने के लिए स्पेशल अभियान छेड़ेंगे। ये चीजें 3 महीने के अंदर पूरी कराने की कोशिश करेंगे। उन 3 महीने के बाद जब ये सारा डेटा आएगा, स्पेशली ऑडिट के बाद जो नतीजे आएंगे, और अगर आप ये सारी चीजें इफ यू पुट टुगेदर, तो ये बिल जो है वो आधे से कम हो जाएंगे। मुझे आप ये बताएं, एक दूसरा मुद्दा लेते हैं। लेट्स लुक एट अनदर इशू। यू ऑलवेज स्पोकन अबाउट लोकपाल, दैट्स हाउ यू गॉट इनटू दिस एक्टिविज्म। जो दिल्ली लोक आयुक्त है, उनका लास्ट ऑर्डर शीला दीक्षित गवर्नमेंट के खिलाफ ये था कि ये जो कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। अगर आप सत्ता में आते हैं, इफ यू विन, will you support Sheila Dikshit's move to regularize unauthorized colonies, or will you have a different policy? I don't think ये ऑर्डर था। ये मनमोहन सिंह का लास्ट ऑर्डर। मनमोहन सिंह ने ये ऑर्डर नहीं किया होगा कि रेगुलराइज नहीं कर सकते। उनका पॉलिटिकल गिमिक है। रेगुलराइजेशन के अंदर घपले हुए हैं। कैसे घपले हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। घपले इस तरह के हुए हैं रेगुलराइजेशन में कि एक एरिया तो ऐसा है जहाँ पे लोग बस गए हैं,
अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उनको रेगुलराइज करना चाहिए। 40% दिल्ली जो है वो अनऑथराइज्ड रह रही है, उनको रेगुलराइज कर, आप उनको दिल्ली से भगा नहीं सकते। रेगुलराइजेशन के नाम पे इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा कई एकड़ का खाली पड़ा हुआ था, उसको रेगुलराइज कर दिया ये दिखा के कि यहाँ पे लोग बस रहे हैं। अब वो जमीन करोड़ों रुपए की बिक रही है। ये कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको एक्सपोज किया था। इस तरह के 2-3 उस केस में मनमोहन सिंह ने किया होगा, बिकॉज कोई ये कह ही नहीं सकता कि रेगुलराइज नहीं होना चाहिए। रेगुलराइज तो होना चाहिए, उसमें लोग कोई वो नहीं है। Arvind, one of the criticisms or the question marks raised over your party is its absence of a clear ideological unity. और मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि इसकी जो ओरिजिन्स हैं ये अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी उसमें थी। उसमें उस समय भी बोला जाता था कि भाई एक तरफ किरण बेदी की आइडियोलॉजी थी, एक तरफ प्रशांत भूषण की आइडियोलॉजी थी। आपसे ये बार बार पूछा जाता है, जैसे आपके कॉलीग है प्रशांत भूषण, ही हैज अ सर्टेन पोजीशन ऑन माओइज्म, उनकी डिक्लेयर्ड पोजीशन है। ही हैज अ सर्टेन पोजीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी। क्या पार्टी ने तय किया है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पे आप लोगों की क्या पोजीशन रहेगी? आप मेरे से पूछिए कि जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। प्रशांत की पोजीशन ये देश का अभिन्न अंग है, ऐसा पार्टी मानती है। तो प्रशांत की जो पोजीशन है वो उनकी पर्सनल राय, बट ही इज नाउ अ मेंबर ऑफ योर पार्टी। ही मे हैव अ पर्सनल ओपिनियन, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? He is a important member of the party. He can have his personal opinion. और ये बड़ा क्लियरली 10 बार हम बोल चुके हैं, प्रशांत भी बोल चुके हैं कि मेरी अपनी पर्सनल राय है, पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय उनसे बिल्कुल भिन्न है। पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न है। माओइज्म हमारा ये मानना है कि जो उन लोगों ने इश्यूज उठाए हैं, गरीबी का, भुखमरी का, भ्रष्टाचार का, वो इशू जरूरी है, लेकिन उनके तरीके गलत है, तरीकों से हम सहमत नहीं। वायलेंस से इस देश का समाधान नहीं निकल सकता, स्वराज से निकल सकता है। आपकी कॉलीग प्रोफेसर योगेंद्र यादव, उन्होंने कांशीराम जी का एक कोट एक इंटरव्यू में दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम नई पार्टी हैं, और कांशीराम जी ने जब बीएसपी शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई पहला चुनाव जो है वो हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आप जब अपनी एनवायरमेंट का असेसमेंट करते हैं इस बारी, आप क्या मानेंगे कि अभी आप नई पार्टी हैं और इस बारी जीत आपकी नहीं है? 47 सीट आ रही है हमारी। इतनी सर्टेनिटी से कैसे कह सकते हैं आप? देख लीजिए। Do you trust opinion polls that much? गलियों में घूम रहे हैं हम लोग, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। शीला दीक्षित जी की तरह अपने एयर कंडीशन बंगले के अंदर नहीं बैठे। हमें पता है जनता क्या सोच रही है, हमें पता है जनता कितनी दुखी है। कल मेरे को एक आदमी मिला था, वो कहता है जी अभी 150 रुपए की सब्जी खरीद के आया हूँ, और कहता है 2 टाइम की है, बस 2 टाइम की सब्जी 150 रुपए की बनेगी उसकी। मान लीजिए एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं आता और आएगा सर, आएगा। ये हाइपोथेटिकल एक हाइपोथेसिस ले लीजिए आप, क्योंकि पॉलिटिक्स में सारे ऑप्शंस आपने भी वे की होंगी। If you are in a position where you have to choose between supporting the Congress or the BJP because there is a hung assembly, आप क्या करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में पति पत्नी का रिश्ता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा के जो कागज मैंने डिस्क्लोज किए थे, वो कागज बीजेपी वालों के पास 1.5 साल से मौजूद थे। उन्होंने दोनों के अंदर सेटिंग हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का जो अभी घोटाला चल रहा है, शीला दीक्षित जी तो मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। बीजेपी वालों के 24 एमएलए थे दिल्ली विधानसभा में, क्या किया इन 24 एमएलए ने? एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया। भी 24 के 24 ने 5 साल के अंदर 24 एमएलए कम नहीं होते। जब शीला दीक्षित जी बिजली के दाम बढ़ा रही थी दिल्ली के अंदर, ये 24 के 24 इस्तीफा दे देते, तो शीला दीक्षित जी की हिम्मत नहीं थी बिजली के बिल बढ़ाने की। बिजली कंपनियों ने शीला दीक्षित जी को पैसे खिलाए बिजली के दाम बढ़ाने के लिए। हाउ कैन यू से दैट? ये क्या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है विदाउट एविडेंस? उनको इन्फ्लुएंस किया, चलिए आप वो काट देते हैं। उनको इन्फ्लुएंस किया बिजली के दाम बढ़ाने के लिए, और बीजेपी वालों को इन्फ्लुएंस किया चुप रहने के लिए। दोनों मिले हुए हैं जी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक साथ बैठ के दोनों स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आजकल फोन जा रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के सारे लोगों के पास फोन जा रहे हैं, यहाँ भी कई लोगों के पास गए होंगे, मेरे खिलाफ फोन कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। एक फोन जाता है, केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, बीजेपी वाले करा रहे हैं। केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने इनकम टैक्स को लूटा, केजरीवाल कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस के साथ जाके मिल जाएगा, इस बार केजरीवाल को वोट मत देना, बीजेपी को वोट मत देना। कांग्रेस वाले फोन कराते हैं, केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने इनकम टैक्स को लूटा, केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, इस बार बीजेपी के साथ जाके मिल जाएगा, केजरीवाल को वोट मत देना, इस बार कांग्रेस को वोट। दोनों पार्टियां केजरीवाल के खिलाफ फोन करा रही हैं। क्यों? इसलिए कि चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, बिजली कंपनियों से दोनों को फायदा मिलता है।
चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए चाहे कांग्रेस सत्ता, ठेके दोनों के पार्टियों के नेताओं को मिलते हैं। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी आ गए तो इनका रायता फैला देंगे, इनको ठेके मिलने बंद हो जाएंगे, जन लोकपाल बिल पास करेंगे, इनके नेताओं को जेल भेज देंगे हम लोग। अगर हंग असेंबली हुई तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इन दोनों पार्टीज में से किसी को सपोर्ट देना पड़े? मैं इनकरेज करूंगा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस सीधे सामने आए ना, मिलके सरकार बनाए, देश के ऊपर एक और चुनाव। ये तो कभी होने नहीं वाला। क्यों? जब पीठ पीछे सारा दिन पार्टी करते हैं ये लोग, तो खुल के आ जाए, इस बार क्या दिक्कत है? बट आर यू रूलिंग आउट सपोर्टिंग ईदर ऑफ देम? आर यू रूलिंग इट आउट? आप रूल आउट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप रूल आउट कर रहे हैं? रूल आउट कर रहे हैं, बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं। और मैं ये इनकरेज करूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस वालों को एक और चुनाव नहीं थोपना चाहिए देश के ऊपर, और दोनों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अच्छा, यू हैव टू फर्स्ट विन योर ओन इलेक्शन अगेंस्ट शीला दीक्षित। क्या आप एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं एक ही सीट से लड़ूंगा, और आपको ताज्जुब होगा कि इस बार बुरी तरह से हारने वाली है शीला दीक्षित। You are saying you are going to defeat Sheila Dikshit? Of course. In her own seat? In her own seat. And you will fight from only one seat? Only from that seat from where she fights. आपकी पार्टी ने अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है। आपने उनको बीजेपी का मनमोहन सिंह बोला, ये क्यों बोला आपने? वो है बीजेपी का मनमोहन सिंह। आप उनकी क्या कह रहे हैं कि भाई डिसेंट हैं और चुप रहते हैं क्या? Would that be your description? Will you contest? चुप नहीं रहते, आप बताओ, चुप नहीं रहते। 7 साल से बीजेपी वाले एमसीडी में चोरी कर रहे हैं, हर्षवर्धन साहब ने एक मुंह नहीं खोला। 5 साल से दिल्ली में बिजली के बिलों से जनता त्रस्त है, हर्षवर्धन साहब ने मुंह नहीं खोला। तो जैसे कांग्रेस वाले सारे कुकर्म करते हैं, उन्होंने कोयला चोरी कर लिया, उन्होंने ये 2G चोरी कर लिया, उन्होंने सब चोरी कर लिया, और मनमोहन सिंह जी से साइन करा लेते हैं। मनमोहन सिंह से आंख भी बंद रखते हैं, मुंह भी बंद रखते हैं। ऐसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है, बीजेपी वाले सारे कुकर्म करेंगे और इनसे साइन करा लेंगे। अगर शीला दीक्षित अपना चुनाव जीत जाती है और आप हार जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं। दिस आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। But I'm sure as a politician you have weighed these options. अब तो आप नेता बन गए हैं ना, तो आपने ये ऑप्शंस वे किए होंगे। देखिए सर, हम यहाँ पे करियर बनाने नहीं आए हैं, करियर छोड़ के आए हैं, अपने देश के लिए आए हैं। चुनाव जीते या हारें, ये हमारा चुनाव नहीं है। अगर हम हारते हैं तो ये सारे हारेंगे, और अगर हम जीतते हैं तो ये सारे जीतेंगे। ये हमारा चुनाव नहीं है। दैट इज द रीजन आई एम नॉट सो टेंस। ये लोग तो स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे, ये हमने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा के बैठे हैं। क्यों? अब जनता को सोचना है कि जनता को क्या करना है, जनता सोचेगी, हम पूरी कोशिश। बट डू यू फेस अ चैलेंज इन द फैक्ट दैट टू पुट अप कैंडिडेट्स इन 70 सीट्स, आपके पास शायद एक्सपीरियंस वाले पॉलिटिशियंस को ढूंढना या कैंडिडेट्स को ढूंढना मुश्किल हुआ होगा? बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है जी, ये सारे एक्सपीरियंस वाले नहीं आए। इनको किस चीज में एक्सपीरियंस है? पर लोगों को अगर राजनीति में एक्सपीरियंस नहीं है, इनको कैंपेनिंग ही नहीं करनी आती। बट पीपल मे नॉट नो दीज कैंडिडेट्स, दे मे नॉट नो दीज मेन एंड वुमेन। जो आम आदमी पार्टी को तो लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी को लोग जानते हैं, झाड़ू को सारे जानते हैं, झाड़ू पे वोट पड़ेगी। तो कैंडिडेट्स पे नहीं पड़ेगी, पार्टी पे पड़ेगी, आप मानते हैं? थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं, जितना जानेंगे, कोशिश कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स लगे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी अंत में कि आपने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, starting with right to information, then anti-corruption movement, now politics. Do you believe कि आपने रास्ते में आपसे भी गलतियां हुई? Do you believe there have been learnings for you? बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। जैसे? मेरे को पहले बता देते, मैं सोच के आ जाता। नहीं, पर आपको लगता होगा कि भाई along the way I have changed. Have you changed? Is the Arvind Kejriwal who was in RTI to the Arvind Kejriwal who was in Anna Hazare movement to today's Arvind Kejriwal? आप कैसे बदले? Taught me a huge amount of patience, and it has made our entire outlook also much more inclusive. पहले तो केवल जन लोकपाल की बात करते थे, और लोग कहते थे कि आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं जन लोकपाल से, आप कुछ और बात ही नहीं कर रहे। वो तो होना भी चाहिए, अर्जुन की तीर की तरह होना चाहिए, निशाने पे होना चाहिए। तो उस टाइम वो काम कर रहे थे तो उससे ऑब्सेस्ड थे, उसके पहले आरटीआई कर रहे थे, आरटीआई से ऑब्सेस्ड थे। आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म कई बार होता था कि आपके शूट एंड स्कूट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, where you would do these press conferences, you would level allegations and then you would move on to the next issue. In retrospect, do you believe that you could have handled that differently? No. शूट एंड स्कूट तो आप लोग करते हैं, आप लोग खुलासा कर देते हैं, अगले दिन दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। आपने भी ऐसे ही किया? मैं अपने पे आता हूँ। हाँ। तो पहली बात तो शूट एंड स्कूट आप लोग करते हैं, आप मानते हैं? न्यूज पे जितना रहना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मैं मानती हूँ, वो नहीं होता। हाँ, तो शूट एंड स्कूट तो आप लोग करते हैं, पहली चीज मीडिया वाले करते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने रॉबर्ट वाड्रा को एक्सपोज किया, बीजेपी के पास सारे कागज थे, बीजेपी 1.5 साल से नहीं कर रही थी, हम लोगों ने हिम्मत की, और जिस दिन मैंने किया उस दिन रात को मेरे पास 2 या 3 एडिटर्स के फोन आए, यार कागज तो हमारे पास भी थे, हमारी हिम्मत नहीं थी। तो पहली चीज तो हमारी हिम्मत की दाद दीजिए कि हमने किया। कई लोगों ने मेरे को समझाया, अब पुलिस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
पुलिस तो उनके पास है, हमारे पास तो सीबीआई भी नहीं है, सीबीआई भी उनके पास है। आपके पास जुडिशरी थी, जुडिशरी, और बहुत लोगों ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इररिस्पॉन्सिबल है, आप कचहरी में जाइए, आप कोर्ट में जाइए। वो यही चाहते हैं, जुडिशरी में चले जाओ, 20 साल लग जाते हैं, इसलिए जानबूझ के ये कह रहे थे जुडिशरी में जाओ, नहीं जाते हम जुडिशरी में। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपने 2G में क्या हुआ, 2G में राजा को बेल मिल गई, कनिमोई को बेल मिल गई, सबको बेल मिल जाती है इस देश के अंदर, और 20 साल लटकेगा अभी 2G का मामला। इरिगेशन स्कैम में 1.5 साल में एक भी हियरिंग नहीं हुई है इरिगेशन स्कैम में, वहां भी हमने क्या पीआईएल, कोयले की पीआईएल हमने कर रखी है, 2G की पीआईएल हमने कर रखी है, इरिगेशन स्कैम की पीआईएल हमने कर रखी है, इस देश की सारी इंपॉर्टेंट पीआईएल हम लोगों ने कर रखी है। क्या निकला उन पीआईएल में? 20-20 साल तक लटकते हैं। ये सारे नेता चाहते हैं कि हम कोर्ट में नहीं गए हम लोग, हमने ये तय किया कि ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नहीं कर रहे, अब हम खुद जाएंगे पॉलिटिक्स के अंदर जाके रॉबर्ट वाड्रा की जांच हम कराएंगे, उसको जेल हम भेजेंगे। बट द क्वेश्चन इज अरविंद, तो लॉजिकल एंड तक हम लेके गए, शूट एंड स्कूप नहीं किया, अंदर जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच कराएंगे, मुकेश अंबानी की भी जांच कराएंगे, सलमान खुर्शीद की भी जांच कराएंगे, नितिन गडकरी की भी जांच कराएंगे, सब लोगों की जांच। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मेरा क्वेश्चन ये है दैट इन ए डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है, और लोग कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए शुड हैव द लास्ट वर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि किसी को बेल मिलनी चाहिए या कोई इनोसेंट है, वुड यू नॉट रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट? अब रॉबर्ट वाड्रा के केस में भी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट नहीं किया, जो अभी हाल में उन्होंने कहा नो वी विल नॉट अलाउ यू टू डैमेज अ पर्सन्स रेपुटेशन। सो विल अरविंद केजरीवाल द पॉलिटिशियन नॉट रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट? ऑफ कोर्स वी विल रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको किसने कह दिया? गलतफहमी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। नहीं, जांच नहीं करता, इट जजेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्लेस्ड बिफोर इट। व्हाट डज इट जज? जजमेंट देता है ना। हाँ, तो जजमेंट अभी तो जांच करनी है, पहली स्टेज में जांच हो, जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच थोड़ी करता है, जांच तो सीबीआई करती है। पर आपने कहा कि आप कोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, दैट इज नॉट योर प्रेफर्ड रूट व्हेन यू। हम कोर्ट्स में भी गए हुए हैं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारे लोग चाहते हो कि हम कोर्ट में चले जाएं और 20 साल चले मामला। जुडिशरी की भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अंत में ये बोलूंगी, आपने कहा मुझसे कई गलतियां हुई, व्हाट इज द वन थिंग अरविंद यू वुड वांट टू चेंज अबाउट डिसीजंस यू हैव टेकन इन द पास्ट और यू वुड डू डिफरेंटली? कुछ ऐसा है कि आप सोच के कहते हैं मे बी यू आर पार्टिंग विद अन्ना हजारे द वे इट हैपेंड, डू यू बिलीव यू कुड हैव हैंडल्ड दैट डिफरेंटली? नहीं, आई थिंक पार्टिंग में तो अभी भी कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है। मतलब अन्ना जी से मैं मिलता रहता हूँ, अन्ना जी से मेरी बात होती रहती है, और अन्ना जी का कहना था कि राजनीति कीचड़ है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी अब सब कुछ करके देख लिया, अब तो इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा, पैंट ऊपर करनी पड़ेगी, अब खुद ही इस कीचड़ की सफाई करनी पड़ेगी झाड़ू लेकर। तो अन्ना जी कहते हैं कि हमें सिस्टम के बाहर से काम करना चाहिए, हम कह रहे हैं सिस्टम के अंदर। कभी कुछ रिग्रेट हुआ कि सिस्टम के अंदर आप आ गए? नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ। इट इज अ नेचुरल नेक्स्ट स्टेप, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर नहीं हो करते तब रिग्रेट होता कि शायद डर गए हम लोग, एंड आई डरे नहीं, हमने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक चीज है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या था? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास आदमी है, 4 आदमी नहीं हमारे पास। ये 2 साल के अंदर इन लोगों ने हमें बर्बाद करने की हर कोशिश की है। मेरे फोन टैप होते हैं, मेरा ईमेल टैप होता है, मेरे पीछे आईबी छोड़ रखी है इन्होंने, सब कुछ। मनीष सिसोदिया के घर होम मिनिस्ट्री की रेड करा दी इन्होंने, प्रशांत भूषण के खिलाफ सीडी बना दी, योगेंद्र यादव को निकाल दिया, सब कुछ कर लिया इन लोगों ने। हमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, और उसी वजह से भगवान हमारा साथ दे रहा है, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम जो हमें लगता है हमारा धर्म है, हम उससे हिचकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। Some people call Arvind Kejriwal an anarchist. वो कहते हैं आप एक एनर्की लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एनर्की तो है, अगर 150 रुपए में 2 टाइम की सब्जी आएगी और महीने की तनख्वाह 4000 रुपए है, तो इन लोगों से पूछो इनके घर में तो ऑलरेडी एनर्की हो रही है, इनका तो घर नहीं चल रहा है। इस एनर्की को थोड़ा सा सिस्टम लाने की कोशिश करना है। Arvind Kejriwal, thank you for talking. Thank you.